Myself, Professor Sohan Sarkar. I'm head at Faculty of Management Studies, Sri Shankaracharya Technical Campus, situated at Bhilai. And on my behalf and on my behalf of the institute, I welcome you all for this live session in Facebook. We got a huge response from different corners, and I'm very happy that I got this response from you all people, and many questions have crept in. Now I will be trying my level best to take as many as questions I can take it up as per the demand of the time and the availability of other infrastructural facilities. In this time of academic, I would suggest you all people to keep yourself safe enough. We cannot overcome right now with corona, but yes, of course, we can take special precautions to keep ourselves and our beloved ones safe enough. Few questions I have already received. Good morning, Supriya. You have already in. Nice. I will just cater you up your question. This is a question you have asked. I often had heard that to climb the business ladder or step in the next position, you typically need an MBA. Okay, fine. What companies are you interested in MBA? Graduates holding technical backgrounds. Okay, fine question, Supriya. Bang on target. Look, Supriya, as far as management course is concerned, every company has its vision to earn more profit, right? And apart from social responsibilities, the main focus is to earn maximum profit. To gain maximum profit, definitely that company or that business unit wants to have a competitive advantage. By competitive advantage, I mean by the cost advantage, I mean by the differential advantage. By cost advantage, it is meant by to have a cheaper product. By differential advantage, to provide the customers a better facility, a better product in terms of services, etc. Now, to have this competitive advantage, every employee has to generate more revenue, has to provide maximum output with minimum inputs. That's what management is. Now here comes a basic fundamental thing that okay, Mohit, Moni, I will try to answer this competitive advantage. I will just finish it my answer to Supriya. The competitive to have a better business model, we need to produce a cheaper product with minimum inputs, right? Now, an employee who is able to convert these inputs to an output in a very competitive way, in a cheaper manner, in a very using very limited resources, will be valued. Now here comes the role of a management. Every individual has its own skill sets, right? I have a certain skill set, you might be having a certain skill set, Moni might be having a certain skill sets. Now these skill sets are to be enhanced, or it has to be matched according to the requirement of the business model. कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो स्किल सेट्स हो और जो रिक्वायरमेंट हो वो मैच कर जाए. ये मैच कराना की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. Skill sets required for a business entity is to be taken care. And once it is taken care, आप मान लीजिए कि आपको एक बिजनेस प्रोसेस में 20 स्किल सेट्स की ज़रूरत है, और आपके पास बीइंग एन इंजीनियर आपके पास सिर्फ 8 ही स्किल सेट है. टेक्निकल स्किल सेट्स होंगी क्योंकि आपके पास मैनेजरल स्किल सेट्स की कमी हो सकती है. नाउ ये जो ब्रिज करने का काम है,
टेक्निकल स्किल सेट्स प्लस मैनेजरियल स्किल सेट्स, एक टोटलिटी के जो स्किल सेट्स बनेगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। मैनेजमेंट प्रोग्राम एंश्योर्स ए ब्रिज बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड द सप्लाई ऑफ स्किल सेट्स विच इज ऑलवेज लोअर इनसाइड। तो इसीलिए कहते हैं कि एक टेक्निकल बंदा या एक टेक्निकल कैंडिडेट जब MBA करने आता है तो वेरी सून ही और शी कैचेज अप। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल लोगों का ही ये कैच करने का आता है। वी प्रोवाइड ए जनरल प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि हम नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स को भी वो स्किल सेट्स इम्प्लांट करने की कोशिश करते हैं और टेक्निकल वाले को भी इम्प्लांट करते हैं। यस, टेक्निकल वाले लोग का कैचिंग पावर ज़्यादा होने के कारण जल्दी कैप अप कर पाएंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड यू सुप्रिया। ओके फाइन, कैन आई मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the competitive advantage? Okay, I think I have already explained this competitive advantage. Competitive advantage basically competition में अपने आप को उनके ऊपर रखने की कहावत है, nothing else. अब ये जो कहावत है, या तो आप पैसे के दृष्टि में उससे आगे चलिए या अपने सर्विसेज के दृष्टि में आगे चलिए। Today in this world of cutthroat competition, एक से आपका काम नहीं होगा। और अब तो इस कोविड के कारण वो जो स्किल सेट में तो और भी बहुत सारे फीदर्स लग गए हैं। वो कहावत थी कि वन हैज टू बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर इन नन वाली कहावत एक चलती थी। अब तो कहावत चेंज हो गई है, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर इन ऑल। क्योंकि कंपनीज के पास एक ही चीज रह गई कि तुम्हारे पास और क्या है। तो आपके पास झोले में जो पिटारे में आपके जो स्किल सेट्स हैं, आपके पास जो ऑफरिंग्स है, वो इतनी और होनी चाहिए कि आपके पास ए है तो ए तो सबके पास है, मेरे पास ए के साथ बी है, अच्छा तो और भी लोगों के पास है, मेरे पास ए के साथ बी भी है, मेरे पास सी भी है सर। आप समझ रहे हैं ना, ये जो स्किल सेट है, ये जो एडवांटेज कंपनीज के लिए आप जो क्रिएट करेंगे तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। I hope I have answered, Moni. Okay, fine. Thank you. Any other? I have a question from Payal. Okay, fine. Payal. Yes, what is it? Which subjects are in the highest demand? ये बोलना थोड़ा बड़ा मुश्किल है क्योंकि market is changing, environment is dynamic. किसी दिन HR का दिन होता है तो किसी दिन मार्केटिंग का होता है, किसी दिन फिनांस को होता है, किसी दिन सिस्टम्स को होता है। अब कुछ साल पहले IT सेक्टर बूम पे था, फिर IT सेक्टर डाउन हो गया, फिर IT सेक्टर बूम पे आ गया। मार्केटिंग होता ही है, प्रोडक्शन होता ही है। तो ये बोल पाना बड़ा ही गलत होगा कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे है। बट यस, एक सबमिशन में यहाँ आपको देना चाहूँगा, एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि डिमांड के हिसाब से आप अपने स्पेशलाइजेशन चूज मत करिए, आप अपने स्किल सेट्स के हिसाब से स्पेशलाइजेशन चूज करिए। इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट, बट योर कोर competencies आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन चूजिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, there's a question from Dharam Kumar. I am unable to see it on my screen. Okay. I am introvert by nature. Which stream MBA should go for apart from MBA in sales and marketing? Which stream in MBA should go with apart from MBA in sales and marketing? बेटा ये क्वेश्चन धर्म, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये जो चीज़ है ये आप का पर्सनालिटी स्किल्स के ट्रेड्स के ऊपर ये फिनोमिनन है। और चूजिंग ए स्पेशलाइजेशन इज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया, कंप्लीटली डिफरेंट क्राइटेरिया। कनेक्शन है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कनेक्शन नहीं है। और मैनेजमेंट तो डिसिप्लिन स्ट्रीम में आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। बट यस, इंट्रोवर्ट होने कोई बुराई नहीं है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भी होना में भी घाटा है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना भी घाटा है। तो देयर हैज़ टू बी अ ब्लेंड बिटवीन व्हाट कैटेगरी, व्हाट स्टाइल ऑफ
बिहेवियर यू हैव, इट डिपेंड्स कि सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। इंट्रोवर्ट, बहुत जगह इंट्रोवर्ट होना भी फ़ायदेमंद है, आप इसको नेगेटिविटी बिल्कुल मत लीजिए। इंट्रोवर्ट कई जगह में फ़ायदेमंद होता है, एक्सट्रोवर्ट कई जगहों में घाटा भी होता है। तो मेरा ये सबमिशन है कि आप हमारे पास आइए, हमारे जो सेशंस होते हैं जिसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ट्रेड्स की मैपिंग करते हैं, तो मेरे डेफिनेटली हमारे फैकल्टी मेंबर्स आपको हेल्प करेंगे आपको मैप करने के लिए कि आपके जो ट्रेड्स एट प्रेजेंट हैं और आपके जो पर्सनालिटी स्किल्स हैं वो क्या है, और आप किस इंडस्ट्री के लिए इंक्लाइंड है, या आपका फ्यूचर कैरियर प्लानिंग आपकी क्या है। वंस कैरियर प्लानिंग इज बिन डन, फ्यूचर स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या रिक्वायर्ड है, एक बार हम मैप कर लेंगे, हम आपके साथ बैठेंगे, मैप करने के बाद फिर हम आपको ये सजेशन दे पाएंगे। एट प्रेजेंट मैं इतना ही आपको सजेशन दे पाऊंगा। ओके, एनी अदर? I think I would explain this. Okay. This is a question from Ankita Verma. Okay, fine, Ankita. Good morning. Considering career goals, how your management program can benefit a candidate? Okay. Look, as I've already explained in my previous few minutes, that management program is nothing but to enhancement of your personality skills and to match the requirement with external world. हम ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कुछ तोप चंद वाली बात नहीं करते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ आपकी इंटरनल स्किल्स को एनहांसमेंट कराया जाता है, जिसमें आप ये यकीन करने लगेंगे कि आपसे ये हो सकता है, आप ये कर सकते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज इज पोटेंशियल, राइट? आप में भी कुछ पोटेंशियल होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा। मैनेजमेंट प्रोग्राम करने से आप अपने पोटेंशियल को अच्छे से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उस पोटेंशियल को यूज करने का या उसकी यूटिलिटी करने का आपको स्किल सेट आ जाती है, जिस कारण से मार्केट में जो कि कट थ्रोट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ पर हम जब मार्केट में उतरते हैं तो मैनेजमेंट किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्सेल कर जाते हैं। उनका कारण ये है कि उनको पता होता है कि उनको करना क्या है। नहीं तो होता ये है कि इस मझधार में लोगों को पता ही नहीं होता कि हमको करना क्या है, विजन क्लियर नहीं होती, उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती। मैनेजमेंट कैंडिडेट चूँकि हम उनको इम्प्लांट करते हैं, हम एट FMS SSTC हम उनको ये चीज़ बताते हैं कि मार्केट में अगर सिचुएशन में ऐसा होता है तो आपको कैसा करना है, ये चीज़ ऐसी होती है तो कैसे करना है। एंड बाय दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आप में अपनी पोटेंशियल को आप जान पाते हैं अच्छे से, और मार्केट में अच्छे से स्टैंड कर सकते हैं, विस्टैंड कर सकते हैं, सो दैट और आप जीत भी उसमें आपकी सक्सेस ज़्यादा होती है। तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस स्टोरी फॉर एनी मैनेजमेंट कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू ए नॉन मैनेजमेंट कैंडिडेट ज़्यादा होता है। अगर ऐसे आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस कराना है, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये चीज़ हर एक कैंडिडेट को करनी चाहिए, रिस्पेक्टिव कि आप MA में एडमिशन ले या ना ले। स्वॉट एनालिसिस अपनी लाइफ के जरूर करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने लाइफ में आप खड़े कहाँ हैं और आपको जाना कहाँ है, और वंस आपका ये रोड मैप तैयार हो जाएगा तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी। आप चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकते हैं। चीज़ें हमको क्या है, बहुत मगजमारी करके चीज़ें हैंडल नहीं करनी है, बड़ी प्लेनली हैंडल होती है, बहुत कूल है लाइफ। एक कहावत है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इफ़ यू सी इट एज इट इज़ एंड नॉट व्हाट इट शुड बी। हम क्या करते हैं कि व्हाट शुड बी करने की कोशिश करते हैं और मझधार में फंस जाते हैं। तो मेरा एक सबमिशन यहाँ ये है कि इफ़ यू कम डाउन टू अस एट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस, माई सेल्फ एंड माई फैकल्टी मेम्बर्स आपको हम इतना हेल्प करेंगे कि आपके कैरियर प्लानिंग में हम आपको मदद करेंगे। आप डाउन द लाइन 2 साल बाद आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके पोटेंशियल क्या है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये सारे मुद्दों पर हम यहाँ पे करेंगे अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्टडीज।
I hope I have given this answer. Okay, one more question we have got it, and it is from Somesh Sharma. How MBA courses are mapped for the skill set required in industry across the domain? Do you think future is learning? Okay. Somesh, थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे मैपिंग किया जाता है और कैसे हम प्रोसेस करेंगे. थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूं दैट व्हाट वी एक्चुअली डू एट FMS. So when a candidate takes admission in the first semester, we have a mentorship program. We make a bundle of 6 to 10 students and make a mentor associated, a teacher mentor associated to it. Now हर कैंडिडेट जैसे आए उनका हम SWOT एनालिसिस करें, उसकी हम मैपिंग करते हैं. इनिशियल हमारा जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, इसमें हम उनके स्किल सेट पे मैपिंग करते हैं और उस मैपिंग करके हम एक प्लेन पेपर में उसको लिख लेते हैं. मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल दैट सोमेश हैज टेकन एडमिशन एट FMS और उनका मेंटर मैं. मेरा काम रहेगा कि मैं सोमेश के साथ समय व्यतीत कर सोमेश के साथ बातचीत करके मैं आपकी SWOT एनालिसिस करूंगा और आपके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पे एक राइटअप लिखेंगे. आप लिखेंगे और मैं उसको कवर अप करूंगा. फाइन. सहयोगी होंगे हमारे 10 लोग 9 लोग जो आपकी टीम में है. नाउ मान लीजिए कि कंपनी है ITC के स्किल सेट HR रिक्वायरमेंट 15 है. चूंकि हमारे पास कंपनियां आती रहती हैं, वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि हमारे पास कैंपस प्लेसमेंट 80% प्लस है. तो कंपनीज आती हैं, उनके HR से हमारी चर्चा होती है, उनके रिक्वायरमेंट क्या है उनकी चर्चा होती है. हमारे जो एलुमनाई हैं उनसे हम फीडबैक लेते हैं. वी हैव ए फीडबैक सिस्टम ओवर हियर जिसमें हम ये जानकारी लेते हैं कि मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है. मान लीजिए ITC की रिक्वायरमेंट है 15 स्किल्स के, 15 ट्रेड्स की. ठीक है. और सोमेश जी के पास अभी ट्रेड्स 6 हैं. तो बट नेचुरल है कि आज की डेट में सोमेश जी अगर ITC में बैठते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि 15 की जरूरत थी ITC को, आपके पास है 6. तो ये डिफरेंस है, ये इतना ज्यादा है कि ITC में आपका सिलेक्शन नहीं होगा. फाइन, कोई इशू नहीं. हमारे पास कुल मिलाकर 1.5 साल है. 2 साल का कोर्स प्रोग्राम है. 1.5 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो फाइनल ईयर है वो हमारा कैंपस प्लेसमेंट पे निकल जाता है और हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस टाइम प्लेस हो जाते हैं. इसलिए मैं 1.5 साल लेता हूँ. 1.5 साल में हम वर्क करते हैं उस कैंडिडेट के ऊपर. मान लीजिए आप हैं यहाँ पे, तो सोमेश के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे कि कैसे करके हम ये 6 ट्रेड्स को हम इम्प्रूव करके 12 से 14 ट्रेड्स तक ले जाएं. पूरा 100% नहीं कर सकते, कैपेबिलिटी के बाहर है, हमारी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है. कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए. 12 से 14 ट्रेड्स तक ले जाते हैं. नाउ वंस वी अचीव एनहेंसमेंट ऑफ दिस ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, जब इंडस्ट्री ITC हमारे कैंपस में आती है आपके इंटरव्यू लेने के लिए, तो आप बिन सिलेक्टेड. आपको सिलेक्ट करके इसलिए ले जाती क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट 14-15 की थी, आपकी ऑफरिंग 12-14 की हो गई, मैच कर गया. जो 2-3 स्किल सेट की कमी रह गई वो ट्रेनिंग सेशन में पूरी कर लेते हैं. एंड दस आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे बच्चे आज के डेट में 80% प्लस प्लेसमेंट दे रहे हैं. वो हो रहा है इसलिए क्योंकि हमने वो जो ब्रिज गैप है उस गैप को पूरा कर दिया है. और ये गैप पूरा इसलिए किया गया क्योंकि हम इंडस्ट्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत होता है. इंडस्ट्री वाले लोग हमारे पास आते हैं, उनसे हम रेगुलर फीडबैक लेते रहते हैं. हम इंडस्ट्री के पास जाते हैं, आउटबाउंड एक्टिविटीज करते हैं, गेस्ट लेक्चर्स करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स करते हैं. ये सारी करने के कारण वी आर एबल टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. हम जो काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हम इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होने के लिए तो कर रहे हैं ना. तो हमको अपने आप को जो तैयारी करनी है वो ऐसी करनी है कि हम एक रेडी टू सेल कैंडिडेट बन जाए, कि जैसे ही हम MBA करके निकले हम ऐसे पक जाएं, हमारे पास इतने स्किल सेट्स रह जाए कि हमारे को कंपनियां लपक के प्लेसमेंट दे दें. आई होप आई हैव आंसर्ड यू.
Okay, one more question. I am BTech graduate. It's from Aradhana. Okay. Morning Aradhana. I am BTech graduate from mechanical stream and I am confused whether to choose MBA in marketing or MBA operations. Look, Aradhana, being a mechanical graduate, of course, first love would be production. But again, I would suggest it is very too early for anyone to select the right stream. इंजीनियरिंग में स्ट्रीम सेलेक्ट करना और मैनेजमेंट में स्ट्रीम सेलेक्ट करने में अंतर होता है. ठीक है, आप थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके रख लीजिए कि आपको अपार्ट फ्रॉम 5 स्पेशलाइजेशन जो हम ऑफर करते हैं, दैट इज मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, सिस्टम एंड प्रोडक्शन, वी हैव अ डुअल स्पेशलाइजेशन ओवर हियर. मतलब MBA 2 स्पेशलाइजेशन में किया जाएंगे, दोनों मेजर है. तो इसलिए क्या होता है कि आपके जो वेपन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके जो टूल्स से खेलने के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप 2 में स्पेशलाइजेशन है और आप इजीली मार्केट में एडॉप्टेबिलिटी आपकी अधिक होती है. तो ऐसे कंडीशन में आप 5 से 3 या 2 में ले आइए, फोकस 2 में करिए. पर वंस यू आर इनटू आवर स्ट्रीम, आपको खुद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए. कारण क्या है कि फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट सेमेस्टर जो है हमारा कॉमन होता है, हम सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इनपुट्स देते हैं. क्योंकि मैंने ये पाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि मार्केटिंग होता क्या है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिनेंस के बारे में नहीं पता होता है, प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता होता. ऑफ कोर्स बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर यू माइट बी नोइंग अबाउट प्रोडक्शन, पर आपको शायद बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विच आई कम अक्रॉस आर कन्फ्यूज्ड इन दिस मैनर, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये स्ट्रीम्स होता क्या है. तो गिव मी एटलीस्ट 3 months टाइम, जिसमें हम आपको सारे स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको इनपुट्स देंगे. एंड आपके एक बार स्वॉट एनालिसिस हो जाए, फिर वी विल बी एबल टू जज यू एंड गिव यू ए कंप्लीट सजेशन कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन इट विल बी बेटर फॉर यू. आई थिंक आई गिव. ओके, यस अश्विन. ओके, which big corporates prefer to select MBA with bachelor degree? Ashwin, look, there are very less companies who actually believe or they want specific specialization in graduation. They are more inclined towards the specialization offered in during your MBA program, because they presume that once you are into a management program, management platform, सब लोग को इक्वल ही पोज्ड हैं. चाहे आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हों, चाहे साइंस से किए हों, या इंजीनियरिंग से किए हों, या मेडिकल से किए हों, नर्सिंग किए हों, एनी डैम फील्ड. कारण ये है कि अगर मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में बताऊं तो ये उसी प्रकार है कि हम कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप को अगर कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको फॉर्मेट कर देते हैं, सबको हम इक्वल बेस में ले आते हैं. तो ठीक उसी प्रकार हम जब MBA प्रोग्राम चालू होती है तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम सारे ग्रेजुएट्स को इक्वल प्लेटफॉर्म में ले आते हैं. बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें लोगों के अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो जाएगा. देयर विल बी एन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट डोमेन्स available in the class. Therefore it is not advisable for me to suggest कि कौन सा स्पेशलाइजेशन के ग्रेजुएशन लेवल में वो होगा. यस, कुछ कंपनीज हैं, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो दे प्रिफर स्टूडेंट्स फ्रॉम बायो बैकग्राउंड, बिकॉज बेसिक बायो बैकग्राउंड का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए. रेस्ट मेरे पास ऐसा कोई कंपनी अभी तक तो ऐसा नहीं आया जो ग्रेजुएशन पे लिया है. यस, एलेम्बिक और हिमालय, ये 2 कंपनी थी जो आती हैं, तो वो यूजुअली चाहती हैं कि बायोलॉजी BSc बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आएँ. एक्सेप्ट दिस कोई कंपनी आई हैव नॉट एनकाउंटर्ड कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो. स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनके मैनेजमेंट प्रोग्राम में होता है कि आई वांट मार्केटिंग, आई वांट HR एंड समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला. नथिंग लाइक दैट. Nothing like that. Okay, fine. Mr. Avinash Verma, what's your opinion on introduction of artificial intelligence?
it's a issue. I was just delivering one lecture yesterday on a national forum. I was having a chat with my community. There this topic was very loud and clear. Yes, artificial intelligence is replacing everything. 2 महीने में artificial intelligence has played a very major role. If I say conduction of online examination, the things are moving in so fast that artificial intelligence की इतनी requirement हो गई है. For आपको एक example दे रहा हूँ, examination conduct हो रही हैं जिसमें कि the computer will, the artificial intelligence of the computer will manage your pupil in the eyesight. आँख में जो pupil है उससे मैनेज कर ले रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. छोटा सा मॉड्यूल है कि आपको जो विजन है कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम द स्क्रीन जब वाइल यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट. यस, हम एकेडमिक्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ गया है and in the coming days it will be more and more. I cannot deny this fact that it's the age of artificial intelligence, and you are absolutely true that it will replace every old way of living. Artificial intelligence बहुत आगे जा रहा है, right? So I think I should take leave. You can if you more queries you can please text me. If possible I will definitely try to give or attend as much as I can, and if further needed you can come down to the Faculty of Management Studies. Physically आने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा. You can note down my mobile number. It's 9406298001. I will text it also, my email ID also, and in the website of Shri Shankaracharya Technical Campus you will get my email ID and phone number also. Anytime if you require any sort of career guidance or any sort of help from related with academics and of course in life caring also, I am always available 24/7. रात को थोड़ी सी छोड़ देना, रात सोने देना. And I think it was a nice having chat with you all people. With this I should close my this session with a request that please be safe and take care of yourself. अकेले रहिए, लॉकडाउन में कहीं मत घूमिए, अपने आप को सेव करिए और संसार को सेव करिए.